कारगिल जंग ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 527 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ 18000 ਫੁੱਟ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 527 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਰੋਲੀ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ, ਪੋਤਰਾ ਆ, ਉਸੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਭਰਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਗੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਨਾਂ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। वाइल कारगिल युद्ध को हुए 20 साल हो गए, पर 20 साल में कभी ऐसा कोई दिन गया नहीं जहाँ पे हमने विक्रम को याद नहीं किया। जनरली कोई ना कोई बात उठती है जिसमें विक्रम का नाम आ जाता है, तो मुझे लगता ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है आज की डेट में कि कल की बात थी। और जो बात दिल के बहुत करीब है, क्योंकि विक्रम को मैं 9 मार्च 1999 को आखिरी बार मिला था, और 9 मार्च को विक्रम अपना कमांडो कोर्स करके कमांडो स्कूल बेलगाम से वापस आ रहे थे और मैं दिल्ली में पोस्टेड था। और विक्रम को मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में लेने गया था, और जब मैं विक्रम को लेके घर में आया तो अगर आपको याद होगा उन दिनों एक बहुत फेमस मूवी बनी थी जिसका नाम था प्रहार, और माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर। और जो प्रहार मूवी है ये एक कमांडो स्कूल की ट्रेनिंग के ऊपर बनी हुई है, और हम दोनों की ये फेवरेट मूवी हुआ करती थी। तो जब मैं उनको लेकर आया तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा विक्रम को ये था कि जो कमांडो कोर्स है इज़ इट एग्जैक्टली लाइक प्रहार। और विक्रम ने मेरे को उसका जवाब दिया था कि प्रहार इज़ जस्ट 1/10 ऑफ एन एक्चुअल कमांडो। तो वो जो मेरी मेमोरी है विक्रम के साथ वो सबसे ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज वही हमारी आखिरी मुलाकात थी।
और उसके बाद मैंने विक्रम को बस स्टॉप पे ड्रॉप किया था बिकॉज उनको अपना जहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग था सोपोर बारामूला में, वहाँ पे वापस जाना था। या विक्रम एक बहुत ही डेयरिंग लड़का था, बहुत ही डेयरिंग एंड बहुत ही पैशनेट था। और जब हम स्कूल में भी कोई चैंपियनशिप्स होती थी जनरली, तो जनरली ही यूज्ड टू स्वीप अवे ऑल द प्राइजेस, राइट। हम दोनों भाई नेशनल्स थे टेबल टेनिस में, और विक्रम जब स्कूल में भी हम टेबल टेनिस खेलते थे तो ही वाज अ स्टेट लेवल चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन, और स्कूल को ऑल इंडिया नेशनल में भी रिप्रेजेंट किया था। और स्कूल में भी जो चैंपियनशिप्स होती थी ही यूज्ड टू टेक अवे मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तो वो जो जज्बा था वो शुरू से ही था उसमें, राइट। बट हाँ, जब कारगिल शुरू हुआ और उनको नाम दिया गया शेरशाह का, एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, राइट, दैट वाज अ सरप्राइज टू अस ऑल्सो, क्योंकि जब उनके इंटरव्यू देख रहे थे, टीवी पे आ रहे थे, और जब उन्होंने अपना सक्सेस सिग्नल दिया था ये दिल मांगे मोर, तो ही एक्चुअली लेड लाइक अ लॉयन, इज माय बिलीफ। एक्चुअली क्या है कि देखो, जब आप अटैक पे जाते हो तो शायद जज्बा जो होता है आपका वो किसी डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाता है। और विक्रम ने जब अपना सक्सेस सिग्नल दिया ये दिल मांगे मोर, एंड आई रिमेंबर, क्योंकि हमने भी इंटरव्यू में सुना, और उसके बाद में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स, बहुत सारे जो प्लेटून के सोल्जर थे विक्रम के साथ थे, जब मैंने उनकी विक्रम की ब्रेवरी की कहानियां सुनी, तो सब ये कहते थे विक्रम हमेशा आगे लीड करता था। और मेरा जहाँ तक व्यू है कि विक्रम ने शायद ये इसीलिए बोला था क्योंकि आई थिंक ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द बंकर्स ही हैड डिस्ट्रॉयड एंड एनिमी हैड किल्ड, और उसका मन था कि शायद अगर मेरे को कुछ और बंकर मिले या कुछ और पाकिस्तानी मिले, आई विल स्टिल गो एंड किल देम। और इसीलिए अगर आपको याद होगा कि जब विक्रम बत्रा को दूसरा मिशन दिया गया तो इट वाज हिज चॉइस, उसने खुद ऑप्ट किया था कि मैं अपने आप को वॉलंटियर करना चाहता हूँ सेकंड मिशन में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें वो हंगर थी अभी कि उसका जो मिशन है पूरा, वो भी पूरा नहीं हुआ है। I also wanted to join army, और मुझे अभी तक याद है कि हम दोनों अपना फर्स्ट SSB जो था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, देने इकट्ठे गए थे, और विक्रम का सिलेक्शन हुआ और मेरा नहीं हुआ। और ऐसा 3 बार हुआ कि 3 times आई वॉज नॉट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। और मुझे लगता है कि शायद आर्मी को सिर्फ एक ही विक्रम बत्रा चाहिए था, जो मेरा व्यू है पर्सनल, राइट। और आई थिंक ये भी मेरा पर्सनल बिलीफ है कि शायद व्हेन यू डाई, रियलिटी में तो कहते हैं ना कि सोल्जर्स नेवर डाई, तो शायद खुदा और भगवान को भी शायद अच्छे लोगों की जरूरत होती है। तो इसी मिशन के लिए आए थे, इसी कॉज के लिए आए थे, और आई थिंक उन्होंने वो बहुत अच्छे से अपना सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके आई थिंक ही वेंट बैक। पर अगर आप आज की डेट में देखो तो आई थिंक दे कंटिन्यू टू लिव, बिकॉज हम अभी भी आज की डेट में 20 साल में उनको डेली याद करते हैं। या देखिए, हम दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे, और विक्रम मेरे से सिर्फ 14 मिनट बड़े थे, और आई थिंक आई हैड द बेस्ट कंपेनियन इन विक्रम। हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, हम हर कुछ शेयर करते थे। तो ये ना डबल फीलिंग है, एक फीलिंग जो है वो है प्राइड की, दैट ही कंटिन्यूज टू लिव, राइट। बिकॉज मैंने पिछले 20 साल में इतने लोग मेरे पास आके मिल चुके हैं और मुझे पूछ चुके हैं कि आप एग्जैक्टली इनकी तरह लगते हो, तो लगता ही नहीं है 20 साल में कोई ऐसा दिन गया होगा जब उसकी बात नहीं हुई। तो उस तरफ से अगर आप देखो तो लगता है वो आज भी जीवित है, राइट। रही बात दूसरी इमोशनल बॉन्डिंग की, तो येस वो वॉइड है और वो बहुत चुभता है, एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी पेनफुल टू बियर दैट पेन जो उस वॉइड की वजह से है। बट देन देयर इज अ प्राइड दैट आई एम फॉर्चुनेट कि शायद भगवान ने मुझे ये लाइफ दे के संपन्न कर दिया कि मुझे विक्रम जैसा ब्रदर मिला। तो उन दिनों मैं एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की तरह टाटा फाइनेंस लिमिटेड दिल्ली में काम कर रहा था, और 8 जुलाई को दोपहर को मुझे फ़ोन आया था। तो मुझे आज तक ये नहीं पता चला वो फ़ोन किसने किया था, और बस जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, अनफॉर्चुनेटली रिसीवर भी मैंने उठाया, तो मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि आपके भाई साहब को गोली लगी है और आपको पालमपुर पहुंचना पड़ेगा। तो जब उन्होंने बोला गोली लगी है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था, जिन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था, क्या वो जीवित हैं? तो उन्होंने कहा था नहीं, वी हैव लॉस्ट हिम, ही इज़ नो मोर। तो रिएक्शन ये था कि आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ बैटल कैजुअलिटीज हैविंग, दो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि विक्रम टीवी में काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रहे थे। अपना फर्स्ट मिशन जो था उनका .5140, वहाँ से वापस आए थे, और मुझे अभी तक उनका इंटरव्यू बहुत अच्छे से याद है कि जब उनको पूछा गया था कि आपकी सक्सेस क्या रही, वाइल उनका जो सक्सेस मैसेज था ये दिल मांगे मोर था, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी सबसे बड़ी सक्सेस 5140 की ये है कि मैं 6 लोगों के साथ ऊपर गया था और मैं 6 लोगों के साथ वापस आया हूँ, राइट। तो वो वो दर्शाता है कि वो कितने ब्रेव थे, दैट ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, कि उन्होंने अपने किसी भी सोल्जर को हानि नहीं होने दी। रही बात जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है क्रिमेशन का, तो मैंने उससे पहले कभी क्रिमेशन अटेंड नहीं किया था, और जब हम विक्रम को क्रिमेशन ग्राउंड में लेकर गए तो माय फादर टोल्ड मी दैट यू हैव टू लिट द फायर।
सो और मैं बहुत डरता था कि मुझे फायर जो लिट करनी पड़ेगी और मैं अपने भाई को अग्नि कैसे दे सकता हूँ। बट आई थिंक दैट्स लाइफ। और शायद उनकी जो डेथ थी उससे मेरा जो खुद का एक डेथ फेयर था वो शायद ज़िंदगी में हमेशा के लिए चले गया। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। कारगिल ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਨੇ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋੜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं पिछले 10 साल से कारगिल जा रहा हूँ और कारगिल मेरे लिए एक श्राइन है। तो जो बत्रा टॉप है जिसको .4875 पहले बोलते थे, कि जिसको आफ्टर द वॉर उनकी मेमोरी में इसको बत्रा टॉप का नाम दिया गया था। तो मैं सबसे पहले तो इंडियन आर्मी, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और स्पेशली लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी जो 14 कोर के कोर कमांडर हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बिकॉज मेरा जो ड्रीम था बत्रा टॉप पे जाना, ये सिर्फ उन्हीं की परमिशन की वजह से पॉसिबल हुआ। और मैं अराउंड 1 साल पहले जनरल रावत को मिला था और मैंने वैसे ही अपनी इच्छा दर्शाई थी कि मुझे बहुत तमन्ना है कि मैं अपने भाई को विजिट करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए गोइंग टू बत्रा टॉप वाज लाइक गोइंग एंड विजिटिंग माय ओन ब्रदर विक्रम। तो ये उसी तरह एक साल प्लान हुआ और फॉर्चुनेटली इस साल जब 7 जुलाई को उन्होंने अपनी शहादत के 20 साल पूरे किए, तो आई माई सेल्फ अलॉन्ग विद दी सोल्जर्स ऑफ 13 जम्मू कश्मीर राइफल जो उनकी रेजिमेंट थी, कुछ ऑफिसर और सोल्जर, हमने 7 जुलाई को वहाँ पे जाके फिर से वहाँ तिरंगा लहराया गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं वहाँ गया तो सबसे पहले मुझे ये लगा कि आज की डेट में भी विक्रम जैसे सोल्जर, अनुज नैयर, मनोज पांडे, विजन थापर, हनीफुद्दीन, ये सब आज की डेट में भी जीवित हैं। आज की डेट में भी उन ट्रेकरस माउंटेन्स को वो गार्ड कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स द फीलिंग विच रैन अक्रॉस माई माइंड। और दूसरा ये हुआ कि जब उन्होंने 26 जून 1999 को विक्रम ने, जब वो वहाँ पे कारगिल में ही वॉज फाइटिंग द बैटल, और जब उन्होंने ये मैसेज दिया था ये दिल मांगे मोर, तो उन दिनों में 16,500 की फीट से ऊंचाई से उन्होंने मम्मी पापा को फ़ोन किया था 26 जून को कि मैंने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। और इस बार जब मैं 7 जुलाई को गया तो मैंने मम्मी डैडी को कॉल किया 4875 से कि मैं आज यहाँ विक्रम ने जहाँ पे फतेह हासिल की थी उसी चोटी पे खड़ा हूँ। बट जो फीलिंग मेरे दिल से क्रॉस करी वही थी कि काश जो कॉल मैंने आज करी है 7 जुलाई 2019 को, काश वो कॉल विक्रम ने 7 जुलाई 1999 को करी होती। मुझे ये आ रहा था कि आज की डेट में भी विक्रम बत्रा उस चोटियों पे इंडोमिटेबल स्पिरिट के साथ खड़ा है। और चाहे वो विक्रम हो, मनोज पांडे हो, जैसे मैंने बोला, अनुज नैयर हो, बाकी सोल्जर हो, चाहे वो दे आर फेमस सोल्जर, संग सोल्जर, अनसंग हीरोज, सबका सेक्रीफाइस एक जैसा है। बट जब उन चोटियों पे जाते हो तो आपको ये लगता है कि जब तक हमारे वो फौजी भाई और ऑफिसर उन पूरे बॉर्डर्स को गार्ड करके रखें, हम सब सेफ हैं, राइट। दैट इज द फीलिंग विच केम अक्रॉस टू माइंड। और मैं हर एक फौजी की इंडोमिटेबल स्पिरिट को सैल्यूट करता हूँ। और द ओनली फीलिंग वाज दैट ईच ऑफ दी सोल्जर, एक कहावत है कि सोल्जर्स नेवर डाई एंड दे कंटिन्यू टू लिव। तो आज की डेट में भी ठीक है, वो फिजिकली आपके पास नहीं है, बट शायद उनका जो उन्होंने पूरी ब्रेवरी के साथ उन चोटियों को कैप्चर किया था, वो आज भी हमारी लाइफ में बिल्कुल एकदम सामने विजिबल है। और दूसरी चीज़ मुझे एकदम लगी कि I have a grey hair now, I'm 45 year old, but विक्रम आज की डेट में भी 24 साल का यंग हीरो है। और आज भी लोग उसे बहुत फॉन्डली शेरशाह के नाम से याद करते हैं। सो हम दोनों का निकनेम लव और कुश था। और माई मदर केप्ट दिस नेम बिकॉज माई मदर यूज टू स्टडी अ लॉट अबाउट रामायण। तो भगवान राम के जो 2 बेटे थे लव एंड कुश, उन्हीं के नाम पे मामा ने हमारा नाम लव एंड कुश रखा था। मेरा नाम कुश है और विक्रम का नाम लव था। वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन एक जो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट को, ये बचपन से रिलेटेड नहीं है, पर जब मैं एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की तरह काम कर रहा था टाटा फाइनेंस दिल्ली में, तो उन दिनों आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर माई करियर। दो मैंने मैनेजमेंट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आई हैव डन माई मास्टर्स इन फाइनेंस, बट मेरा करियर जो स्टेबल नहीं था। और विक्रम ऑल्सो न्यू दैट आई एम स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। अभी फॉर्चुनेटली गॉड हैज बीन काइंड कि आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ। तो विक्रम ने मुझे खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जस्ट डू योर बिट इन लाइफ एंड वन डे यू विल रियलाइज दैट यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो ये जो मेरे को आज भी उनकी जो लाइन्स थी लेटर पे लिखी हुई, डिस्पाइट द फैक्ट वो 16-17 हज़ार की ऊंचाइयों पे लड़ाई लड़ रहे थे,
पर उनका ये मुझे जो मोटिवेशन लाइन थी वो मेरे को आज की डेट में भी किक देता है, और मुझे लगता है कि आज भी मैं जब उनकी तरफ देखता हूँ, बिकॉज ही इज द सोल इंस्पिरेशन आई हैव इन माई लाइफ। मैं अपनी जितनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ, मैं सिर्फ उनकी ब्रेवरी से रिलेटेड इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे लगता है कि समवेयर वो आज भी मुझे ऊपर से देख रहे हैं कि हम दोनों ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस थे हम दोनों, और हमारा जो बॉन्ड है वो आज की डेट में भी जीवित है। ठीक है, वो फिजिकली नहीं है मेरे साथ, बट मेंटली इमोशनली इज देयर विद मी, और कहीं ना कहीं से वो मुझे देख रहे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।